Hello students, today I am going to take up lesson number 1 from 11th standard, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Khushwant Singh was an Indian author, lawyer, diplomat, journalist and politician. He was born on 2nd February 1915 and died on 20th March 2014 at the age of 99. One of his well-known novels is A Train to Pakistan. In The Portrait of a Lady, Khushwant Singh has given an account of his grandmother. He draws a lifelike portrait of her in this lesson. Let's start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look like the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. So क्या है इस स्टोरी के बारे में, किसके बारे में खुशवंत सिंह बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं अपनी दादी की, जो ग्रैंड मदर है. ओके अब ग्रैंड मदर्स तो सबको पता ही है, हमेशा वो ओल्ड वुमन होते हैं. कोई कोई बच्चों के ग्रैंड मदर्स तो यंग भी होते हैं और एकदम फिट और एनर्जेटिक भी होते हैं. पर यहाँ पर खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी वो तो बहुत ही ओल्ड थी. जब से उनको देख रहा था वो हमेशा ओल्ड ही रही थी. कभी कभी कोई ओल्ड पीपल उनके घर आते तो बोलते कि तुम्हारी ग्रैंड मदर जब यंग थी तो वो बहुत सुंदर थी. पर उसको लगता कि मेरी ग्रैंड मदर कभी भी सुंदर तो नहीं रही होगी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ओल्ड थी. और ग्रैंडफादर उनके चल बसे थे तो उनकी पोर्ट्रेट जो थी, पोर्ट्रेट यहाँ पोर्ट्रेट का मतलब है उनकी फ़ोटो. और एक बड़ी सी फ़ोटो को ऐसी अच्छी से लाई सी द पिक्चर अच्छी से फ्रेम कर कर ड्राइंग रूम में लगा दी गई थी. और जैसे कि पंजाबी लोग होते हैं, बड़ा बड़ा टर्बन पहने हुए थे और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने थे और उनकी बहुत ही लंबी सी दाढ़ी थी और उनकी पूरा चेस्ट उस दाढ़ी से कवर हो रहा था. और उनका फ़ोटो देखकर ऐसा लगता खुशवंत सिंह को दैट कि वो शायद ज़रूर 100 साल के होंगे जब वो मर गए. और जब भी वो अपने ग्रैंडफादर को देखता तो वो एकदम इतने सीरियस टाइप के रखते कि उनको लगता कि कभी भी उनके ग्रैंडफादर को कोई वाइफ या बच्चे इन सब चीज़ों से वो बहुत दूर रहे होंगे. और उसकी जो ग्रैंडमदर सुंदर थी वो सुनकर ही उसको अजीब सा लगता क्योंकि वो उसकी ग्रैंडमदर उसको कहीं से भी अब सुंदर दिखती नहीं थी. और कभी कभी उसकी ग्रैंडमदर उसको अब जब वो छोटी थी वो कौन से गेम्स खेलती थी उन सब के बारे में भी कभी कभी उनको बताती थी. और कभी कभी उन खुशवंत सिंह ये जब लिख रहे हैं ये स्टोरी, ही इज़ टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड. ओके तो वो क्या कहते हैं, कभी कभी उनकी ग्रैंडमदर उनको किसी प्रॉफिट्स माने सेंट्स, महात्माओं की कहानी भी सुनाया करती थी. और इस तरह से उसका चाइल्डहुड ज़्यादातर ग्रैंडमदर के साथ ही
Bita. Now, she had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of a rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moving in inaudible prayer. Yet she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. तो क्या कहते हैं खुशवंत सिंह एज अ स्मॉल चाइल्ड, उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो थोड़ी सी हाइट कम थी, उनकी थोड़ी सी मोटी थी और वो बेंट थी. बेंट माने जैसे कि ओल्ड एज की वजह से कोई कोई लोग धीरे धीरे उनकी कमर बेंड हो जाती है, तो ऐसे उनकी ग्रैंड मदर भी बेंट थी. और उसके पूरे फेस पे बहुत सारे रिंकल्स में करचलियाँ थी. ओके और उसके सिवाय क्या क्या था, जब से भी उन्होंने अपने ग्रैंड मदर को देखा तो वो सेम ही लगती थी. वो कभी भी यंग या ओल्ड दिखाई नहीं पड़ी. उसको जैसी थी वैसी ही उसको याद है, बचपन से लेके जब तक वो थोड़े बड़े हुए तब तक शी लुक्स द सेम. वो बोलता है वो प्रिटी तो नहीं थी, हाँ ब्यूटीफुल थी. ब्यूटीफुल क्यों? वो पूरे दिन उसकी ग्रैंड मदर क्या करती थी, वो घर पर एक हाथ अपने कमर पर रखती और धीरे धीरे हॉबल्ड माने धीरे धीरे चलती हुई यहाँ से वहाँ चलती रहती. और साथ में उनके पास हमेशा उनकी रोज़री होती. रोज़री क्या होती है? देखो वो माला करते हैं, सब लोग प्रेयर करते हैं जब एक माला जपते हैं, दैट माला इज़ कॉल्ड एज द रोज़री. और पूरे दिन वो अपनी माला से राम का नाम लेती रहते थे. और उनके जो बाल थे, देखो वहाँ पर सिल्वर लॉक्स एक वर्ड है. सिल्वर लॉक्स मीन्स उनके बाल पूरे वाइट हो चुके, सिल्वर की तरह लगते थे. और वो कभी भी उनको ठीक से कोम नहीं कर पाती थी. वो पूरे अनटाइडली उनके फेस पर ऐसे स्कैटर्ड रहते थे. और उनका फेस भी ओल्ड पीपल का फेस कैसा हो जाता है, पक्कड़ हो जाता है, अंदर की तरफ मुंह सब चला जाता है. और इस तरह से उनका फेस भी ऐसा ही था. और उनका जो लिप्स थे वो हमेशा प्रेयर में ही कुछ ना कुछ वो प्रेयर करते रहते थे. वो इतनी धीरे से प्रेयर करते थे कि किसी को सुनाई नहीं पड़ता था. इनऑडिबल मीन्स जो सुनाई ना दे. हाँ वो ब्यूटीफुल थी. वो कहते हैं वो कैसे ब्यूटीफुल थी, उनका फेस, उनका स्किन वाइट थी, कपड़े वाइट थे और उनके बाल भी वाइट थे. तो ऐसा लगता था कि जैसे विंटर में जब स्नो गिर जाता है माउंटेन्स पे सब कुछ वाइट ही वाइट दिखता था, ऐसे उसकी ग्रैंड मदर भी प्योर वाइट सेरेनिटी जैसी थी. हमेशा वो चुपचाप शांत और खुश थी उसकी ग्रैंड मदर हमेशा. ओके नाउ माई ग्रैंड मदर एंड आई वे गुड फ्रेंड्स. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. After a breakfast of a thick, stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. So क्या हुआ अब जब उसके पेरेंट्स, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स सिटी में चले गए रहने के लिए, क्योंकि शायद उसके फादर को सिटी में जॉब मिल गई थी, तब वो और उसकी ग्रैंड मदर विलेज में रह गए. उनके पेरेंट्स ने उनको बोला था कि जब भी हम लोग सेटल हो जाएंगे अच्छी से तो आप दोनों को भी वहीं बुला लेंगे. तो उनका घर तो विलेज में था ही, तो
उसकी ग्रैंडमदर और खुशवंत सिंह दोनों विलेज में रह गए और उसके पेरेंट्स सिटी में चले गए। अब क्या हुआ, रोज़ उसकी ग्रैंडमदर क्या करती, सुबह सुबह उसको उठाती और फिर क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था तो उसकी ग्रैंडमदर उसको नहलाती, उसको रेडी करती स्कूल के लिए। और जब वो उसको नहलाती रहती तब वो हमेशा मॉर्निंग जो प्रेयर है वो हमेशा उनको एक बोरिंग सी आवाज़ में वो गाती रहती उसको। वो इसलिए गाती रोज़ क्योंकि उसको लगा, ग्रैंडमदर को, कि उनको लगता था कि खुशवंत सिंह रोज़ ये प्रेयर सुनेगा तो उनको बाय हार्ट हो जाएगी और वो चाहती थी कि वो भगवान की प्रेयर अच्छी से लर्न कर ले। पर खुशवंत सिंह ने कभी भी उस प्रेयर को लर्न करने की कोशिश नहीं करी। वो सिर्फ इसलिए सुनते थे क्योंकि उनको ग्रैंडमदर की आवाज़ बहुत पसंद थी। फिर उसकी ग्रैंडमदर क्या करती, उसकी स्लेट, पेन, चॉक, इंक पॉट, जो भी उस पुराने ज़माने की चीज़ें थी वो सारी लेकर एक बंडल बनाकर उसको रख देती और फिर वो सारा बंडल खुशवंत सिंह को दे देती। उनका रोज़ का ब्रेकफास्ट क्या था, लाइक पंजाबी घरों में ज़्यादातर चपाती पराठा का ब्रेकफास्ट होता है। तो ऐसे ही ग्रैंडमदर रोज़ एक चपाती बनाती और उस चपाती पे वो थोड़ा सा बटर और शुगर स्प्रेड करती और वो उस चपाती दोनों ग्रैंडमदर और खुशवंत सिंह खा लेते। और फिर वो एक्स्ट्रा चपातीज़ भी बनाती और वो एक्स्ट्रा चपातीज़ लेकर साथ में वो दोनों स्कूल चले जाते। और बहुत सारे चपातीज़ इसलिए बनाती क्योंकि वहाँ विलेज में बहुत सारे डॉग्स थे, उनको पसंद था कि डॉग्स को चपाती खिला सकें, इसलिए वो एक्स्ट्रा चपातीज़ बनाकर ले जाते। नाउ माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside, reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our homes, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. तो क्या हुआ, उनकी ग्रैंडमदर हमेशा उनके संग स्कूल जाती क्योंकि स्कूल में ही एक टेंपल भी था, एक साइड स्कूल चलता और दूसरी साइड टेंपल था। तो जब खुशवंत सिंह स्कूल में बैठकर अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर ये सब चीज़ लर्न करते, जो प्रीस्ट थे टेंपल के, जो पुजारी, वही इन सब बच्चों को सिखाते थे। और तब ग्रैंडमदर वहाँ बैठती और वो अपनी होली बुक्स पढ़ती, ओके, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, शी यूज्ड टू रीड ऑल दोज बुक्स ओवर देयर। एंड जब दोनों का काम हो जाता, जब उसका स्कूल फिनिश हो जाता, तब वो दोनों वापस चलते हुए अपने घर जाते। और जब वो वापस चलते हुए जाते तो क्या होता, उनको सारे विलेज के डॉग्स मिलते और वो विलेज के डॉग्स, व्हाट दे यूज्ड टू डू ओवर देयर, दे यूज्ड टू स्टैंड एट द टेंपल डोर एंड दे यूज्ड टू फॉलो देम टू देयर हाउस। और जब तक वो उसके घर जाते तब तक चपातीज़ उनको खिलाती जाती और जब वो उनको चपातीज़ खिलाती जाती तो वो सारे डॉग्स एक दूसरे से फ़ाइट करने लगते चपातीज़ खाने के लिए। और इस तरह से रोज़ उनका रूटीन था, टू गो टू स्कूल एंड कम बैक विद द dogs throwing chapatis to them. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the courtyard of a city house. तो जब उनके पेरेंट्स अच्छी से सेटल हो गए, दे कॉल्ड द खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंडमदर को सिटी में बुलाया गया। और अब एक टर्निंग पॉइंट आ गई उनकी फ्रेंडशिप में। क्यों? व्हेन दे केम टू द सिटी, उसकी ग्रैंडमदर और खुशवंत सिंह को एक रूम दिया गया और वो दोनों एक रूम को शेयर करने लगे। पर अब ग्रैंडमदर खुशवंत सिंह के संग स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि खुशवंत सिंह इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे और उनको स्कूल जाने के लिए एक मोटर बस आती थी। और इस बार सिटी में तो नेचुरली कोई डॉग्स नहीं थे स्ट्रीट्स में, और इसलिए जो उनका रूटीन था डॉग्स को पराठे खिलाने का वो बंद हो गया। तो अब ग्रैंडमदर को कुछ ना कुछ तो करना था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो स्पैरोज़ आती थी, उनका जो सिटी हाउस था उसका एक बड़ा सा कोर्टयार्ड था, तो वहाँ पर ग्रैंडमदर अब स्पैरोज़ को ब्रेड खिलाने लगी क्योंकि वहाँ पर कोई डॉग्स थे नहीं। नाउ एज द ईयर्स रोल्ड बाय,
We saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught us at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. अब इंग्लिश स्कूल में जाने के बाद क्या हुआ, जो खुशवंत सिंह थे, धीरे धीरे उनको बहुत सारा काम मिलने लगा स्कूल से और वो रोज़ अपना स्कूल का होमवर्क करते। तो धीरे धीरे उनकी ग्रैंडमदर उनको पहले पूछा करती थी कि वो क्या पढ़ रहे हैं स्कूल में। तो वो उनको कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताते, फिर उनको कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में बताते, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताते, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताते और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वो स्कूल में पढ़ रहे थे। पर इस बार ग्रैंडमदर उनको उनके लेसन्स के साथ हेल्प नहीं कर सकती थी क्योंकि उनको इन सब के बारे में उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं था और उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनको भगवान के बारे में या होली बुक्स के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता था। एक दिन जब वो स्कूल से आया, बहुत खुशी उसने ग्रैंडमदर को बोला, आजकल हमको म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं स्कूल में। अब ग्रैंडमदर को बहुत ही डिस्टर्ब हो गई क्योंकि उनको लगा कि म्यूज़िक और इस तरह की चीज़ें सिर्फ जो भिखारी होते हैं उनको ही सीखनी चाहिए, अच्छे बच्चों को इस तरह की चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए। और उसके बाद वो धीरे धीरे बिल्कुल उससे बात करना उनका बंद हो गया और वो दोनों की लाइफ आगे इसी तरह बढ़ती गई। नाउ व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. While she was in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. नाउ खुशवंत सिंह अब बड़े हो चुके थे और वो यूनिवर्सिटी जाने लगे। अब इस बार जब वो बड़े हो गए तो उनको अपना एक खुद का कमरा दिया गया। अब वो कॉमन लिंक था जो एक ही कमरे में दोनों माँ दादी और बेटे का, वो भी ख़त्म हो चुका था। अब दादी माँ ने भी चुपचाप उसका जो लोनलीनेस था वो उन्होंने स्वीकार कर लिया और अब से वो अपने स्पिनिंग व्हील पर अपना काम करती रहती। सुबह से शाम तक स्पिनिंग व्हील पर कुछ ना कुछ करती रहती और साथ में प्रेयर बोलती रहती। और आफ्टरनून का टाइम उनका सबसे फेवरेट टाइम था क्योंकि आफ्टरनून में वो क्या करती, ब्रेड लेकर छोटे छोटे बिट्स में उसको तोड़ देती और वो वरांडा में जाती और वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स आ जाती और हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स आती और इतनी आवाज़ें करती, शोर मचाती और सारे बर्ड्स को वो ब्रेड खिलाती। जब वो ब्रेड खिलाती तो कोई बर्ड्स उनके लेग्स पे बैठ जाते, कोई उनके शोल्डर पे बैठ जाते और कोई बर्ड्स तो उनके सर पे भी बैठ जाते और वो बहुत खुश होती इन सब चीज़ों से और कभी भी उन बर्ड्स को वो भगाती नहीं थी। और जब भी वो ये आधा घंटा जो वो बर्ड्स के संग स्पेंड करती, ऐसा लगता कि वो उनका सबसे हैप्पीएस्ट टाइम हुआ करता था। नाउ when I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset.
I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingertips were busy telling the beads of a rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब खुशवंत सिंह फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने वाले थे, बाहर जा रहे थे इंडिया से। तो उनको पता था कि अब 5 साल तक वो बाहर ही रहेंगे और वहीं पर उनकी पढ़ाई चलेगी। उनको लगा कि उनकी ग्रैंडमदर को अच्छा नहीं लगेगा ये बात, पर ग्रैंडमदर ने इस बार कुछ बोला ही नहीं। पर वो रेलवे स्टेशन आ गई उनको छोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ से शायद वो दूसरे एक सिटी में जाते और वहाँ से वो फ़्लाइट पकड़ने वाले थे। तो वहाँ पर आई और कुछ बोली ही नहीं, चुपचाप अपना प्रेयर ही बोलती रही। और वो अपनी बीड्स ऑफ रोज़री जो माला थी वो लेकर आई थी, और साथ में उसको अपने बीड्स को लाइक चलाती गई और प्रेयर बोलते गए। और एट लास्ट जब उनको उसका ट्रेन का टाइम हो गया, तो ग्रैंड मदर ने, दादी ने अपने बेटे को, पोते को, उसके फोरहेड पर एक किस दिया। और उसको वो किस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो उनको लगा कि वो सबसे एक लास्ट साइन होगा फिज़िकल कांटेक्ट का दादी और पोते के बीच में। बट दैट वाज नॉट सो। After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. अब 5 साल तो उड़ गए इस तरह से ही। और अब एक्चुअली जब खुशवंत सिंह जा रहे थे तो उनको लगा शायद 5 साल के बाद शायद उनकी दादी नहीं रहेगी, पर 5 साल यूं ही उड़ गए और वो वापस घर आ गए। और जब वो घर आए और दादी माँ तो स्टेशन पर पहुंच गई उनको लेने के लिए, और जब उन्होंने दादी माँ को देखा तो शी वॉज़ नॉट इवन 1 day ओल्डर। जैसे वो उनको छोड़ के गए थे वो वैसे के वैसे ही थी। और इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। जैसे ही उन्होंने पोते को देखा, उन्होंने उसको अपने आर्म्स में ले लिया और वो अपने प्रेयर्स बोलती गई। और जब वो वापस सब लोग घर आए, तब भी वो सबको छोड़कर अपने स्पैरोज़ को ब्रेड खिलाने लगी। और इस बार वो स्पैरोज़ के संग ज़्यादा टाइम बिताने लगी, और कभी कभी स्पैरोज़ को कुछ ना कुछ रिब्यूक्स माने लाइक कुछ हल्की फुल्की उन चिड़ियाओं को थोड़ी सी स्कोल्डिंग्स करने लगी। इस लाइट स्कोल्डिंग्स जो कहते हैं वो। नाउ इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शी डिड नॉट प्रे। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। फॉर सेवरल hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. This was the first time since I had known her that she did not pray. अब पोते के आने की खुशी में दादी माँ ने क्या किया, एक ड्रम निकाला, और ड्रम अब बहुत पुराना हो गया था, और उस ड्रम को ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी और खुशियों के गीत गाने लगी सबके साथ। और वो बहुत खुश थी कि उनका पोता अब वापस घर आ गया था। सब लोग उनको बोल रहे थे, अब दादी माँ इतना सारी ज़ोर से मत बजाओ, आपको स्ट्रेन हो जाएगा, थक जाओगे। तो भी दादी माँ वो बजाती ही रही और बहुत खुश थी। और वो पोता वापस घर आया था, उसकी खुशी में वो खूब सारे गाने गा रही थी। और इस बार पहली बार उन्होंने अपना प्रेयर बंद कर दिया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। बट माई ग्रैंडफादर थॉट डिफरेंटली। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us.
जैसा सबने सोचा था ऐसे ही हो गया। ग्रैंड मदर इल हो गई, नेक्स्ट मॉर्निंग में उनको फीवर आ गया। और जब डॉक्टर बुलाया गया तो डॉक्टर ने बोला नहीं, छोटा सा माइल्ड फीवर है, थोड़ा सा ही फीवर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ग्रैंड मदर ने बोला नहीं, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है और अब मेरे को जाना है भगवान के घर, और अब मैं आप सब लोग से कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। एंड वो चुपचाप वहाँ पर अपने बेड पर लेट गए। We protested, but she ignored our protests. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. तो सबने बोला नहीं दादी माँ रुको, वेट करो, तो भी किसी की बात नहीं सुनी उन्होंने, और वो एकदम शांति से अपने बेड पर लेट गए और अपने प्रेयर और अपने बीड्स से प्रेयर करते रहे। और उसके थोड़ी देर बाद ही अचानक से उनके लिप्स बंद हो गए मूव करना, और जो रोज़री थी वो उनके हाथ से नीचे गिर गई। उनके मुंह पर एकदम शांति थी और अब सबको पता चल गया अब वो मर चुके थे उनकी दादी। We lifted her off the bed and, as it is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirruping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. So what happens here now in the last paragraph is the most, you can say, touching paragraph in the whole lesson. इसमें क्या कहते हैं, खुशवंत सिंह ने क्या देखा, अब कोई मर जाता है तो सब लोग फिर रोने लगते हैं और ये सब मॉर्निंग होता है, तो इसी तरह से वो सब लोग रोना और पीटना ये सब चालू था घर पे। फिर उसके बाद इवनिंग टाइम पर सब लोग ने ग्रैंड मदर को वहीं छोड़कर वो सब जो भी अरेंजमेंट्स करते हैं, कोई मर जाता है तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं उनको जलाने के लिए, तो वो सब अरेंजमेंट्स के लिए सब लोग चले गए यहाँ और वहाँ। और जब वो वापस आए तो इवनिंग टाइम हो गया था और उनके रूम में पूरा सन की लाइट थी और पूरे रूम में थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज़, जो उनका फेवरेट उनकी स्पैरोज़ वहाँ बैठी थी। पर रोज़ जो स्पैरोज़ बहुत ज़ोर से आवाज़ें करती, चिरपिंग्स करती, आज सारी स्पैरोज़ एकदम चुप थी। You can just imagine all the small birds also knew that grandmother was dead and they showed the respects for grandmother by keeping quiet over there. एक आवाज़ नहीं आ रही थी, किसी को पता ही नहीं चला कब स्पैरोज़ आए, तो एकदम सब लोग सरप्राइज्ड हो गए देखकर उनको। पर आज तो ग्रैंडमदर जिंदा नहीं थी उनको ब्रेड देने के लिए, तो उसकी जो मम्मी थी, खुशवंत सिंह की जो मॉम थी, उन्होंने जैसे ग्रैंडमदर ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके सब स्पैरोज़ को खिलाती, इसी तरह उन्होंने भी ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके वहाँ पर उनके लिए डाल दिए। पर जो स्पैरोज़ थी, एक भी स्पैरो वहाँ से उठी नहीं और ना उन्होंने वो ब्रेड की तरफ देखा, वो वहीं बैठी रही। और जब तक उनकी ग्रैंडमदर की जो लाश थी वो लोग लेकर बाहर नहीं चले गए, तब तक वो सारी स्पैरोज़ बिना आवाज़ के वहाँ बैठी रही। एंड जब वो बाहर चले गए ग्रैंडमदर की लाश को लेकर, तब वो चुपचाप बिना आवाज़ के सारी बर्ड्स उड़ गई। सो यू कैन सी इवन द स्मॉल स्पैरो ऑल्सो इट नोज़ and feel sad when someone who really loved them died. So this is the beauty of the small sparrow sitting there and sitting quietly.
ऑलवेज कभी भी बर्ड देखोगे तो हमेशा आवाज़ ही करती रहती है, पर आज ग्रैंड मदर नहीं रही तो बर्ड्स भी एकदम चुप हो गए। सैडनेस उनका उन लोग ने अपना दर्शाया बाय कीपिंग क्वाइट। और दूसरे दिन क्या हुआ, सब जब वो स्वीपर आया तो सारे वरांडा में ब्रेड के क्रम्स उधर ही पड़े थे और एक भी बर्ड ने एक भी क्रम नहीं खाया था। और उसके बाद जो स्वीपर आए उन्हें सारे ब्रेड क्रम्स लेकर डस्टबिन में डाल दिए। तो इस व्हाट वी सी फ्रॉम हियर, एविडेंटली द स्पैरोज हैड कम टू मॉर्न द डेथ ऑफ the grandmother. They had come to give their last respects to the grandmother. Okay, that's all in the story today. Thank you one and all. Bye bye.